Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the recording for skills at the rate 100 where for 100 days we are bringing for you 100 different speakers from all over the country. The speaker is CA Puneet Mehta, and we have learned all about GST inside Tele, all the GST features inside Tele which can help us do a lot of things. So now, what are we waiting for? Let's go. Hello everyone, welcome to 59th session of Skills at the Rate 100 where we are trying to bring for you 100 different speakers all over the country, 100 different experts on 100 different subjects. Today also a topic very special we will take up. The topic is GST in Tele. How we can comply with GST inside Tele. We have a very special speaker, CA Puneet B. Mehta, who is the director of AIMTech Business Solutions Private Limited. With over 21 years of expertise at the intersection of finance and technology, also tele-evangelist, adapting in designing and implementing innovative financial solutions. Also, his achievements include being a co-author for Tele for Professionals, which was published by WIRC of ICI, and developing fully integrated Tele module for diverse sector, including real estate, chartered accountancy, logistics, education. Plus many more things. He has been a leadership in professional bodies. Many professional bodies are there. Educational contribution includes being a regular faculty, training IS officers, and many other things. So, sir, thank you so much for accepting our invitation. We are very glad that one pain point today, people will shift after watching the session. I can guarantee you will shift from being manual or this hodgepodge in GST to very proper streamlined process. Over to you, sir. Thank you so much for accepting our invitation. Let me share my screen. Thank you, participants, and thank you, special thank you to Lokesh Bhai for having me here. I am really grateful and would ensure that next 60 minutes are spent by all of us in a very delightful and engaging way. That would be my endeavor. Each minute of your participants will be utilized as if you are learning something new. Maybe some of us might be knowing some of the things, but that's fine. You can correct me if I'm wrong somewhere. Please let me know whatever it is. Lokesh Bhai, first and foremost, thank you for doing something for our country. 59 skills have, this is a 59th session, and 59th, you have already conducted 58 sessions, and that speaks of volumes of your professionalism and working towards building India. This is a contribution. Today's contribution is a small contribution to the ocean of the contribution that you have done. So I'm really grateful that you have called me on this session, and I would like to make each minute and each second of our participants useful and worthwhile. Thank you, Lokesh Bhai. And participants, let me share the screen right now. Yes, sir. Screen is visible. PPT. Wonderful. So टैली के ऊपर है और पीपीटी चालू कर दिया है. यस, स्लाइटली पीपीटी है, थोड़ा सा आगे का स्टार्टिंग का रास्ता बनाने के लिए, एंड आफ्टर दैट इट वुड बी कंप्लीटली ऑन टैली ओनली. So not to worry, these are my connect details. Those of you who wish to connect with me, Lokesh has already informed that what I'm director at AIMTech Business Solutions Private Limited, and these are my connect details. Just a small introduction of what Team AIMTech specializes at. Tele on Cloud, customization. We'll see a lot of customization maybe in some other session, but not today. Integration, and of course the sales and upgrades. Okay, so what are we going to do today? We are going to do GST return filings and reconciliation, including IMS. We will see how Tally is operating in IMS. Generate data for reporting for 3B, which is there on your and mine head in next 4 days. Some useful GST options that would be, I think many of us are not aware. So that I'm going to discuss, and if time permits, new updates in release 7 related to GST, because today's topic is GST in Tally Prime. So how can we leave the latest updates in Tally Prime, right? So
benefits क्या क्या है? Many, some of you said we are using CompuGST. Some of you said we are just generating Tally GSTR1. So forget GSTR2B तो Excel में होता होगा या CompuGST में होता होगा या कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में होता होगा. बट जो लोग Tally में से जनरेट कर रहे हैं, what benefit they are getting it, I just wanted to highlight that. बिकॉज अगर बेनिफिट है तो ही है. सर मैं मारवाड़ी हूं और बहुत सारे लोग, हमारे लोकेश भाई भी मारवाड़ी है और बहुत सारे लोग हैं, एंड वी वैल्यू ईच एंड एवरी मिनट ऑफ अवर्स एंड आवर टीम मेंबर्स. सो एंड लाइक दैट मेनी ऑफ द अदर बिजनेसमैन एज वेल. सो क्या होता है कि बेनिफिट पहले दिखना चाहिए, कुछ फायदा हो तो वो काम करना चाहिए. नेक्स्ट 1 घंटा आपका और मेरा बेनिफिट होना चाहिए. सर तो क्या बेनिफिट हो सकता है? तो क्लाइंट हिमसेल्फ अपलोड leaving only the checking to chartered accountants. Many of you are chartered accountants. The stress of team is drastically reduced on 1 and 3B due dates. This is practically I have seen. This leads to more clients can be catered during the month, which focus on value acquisition. Manual notes of dates of reporting done is completely reduced. Now, what do I mean by manual notes? So when we are, reconciling clients' data in Excel and keeping it again this working, so we have to ask our team member to keep track of each transaction for each client. Now, some of you might be handling tens of clients, some of you might be handling hundreds of clients, and when that goes to hundreds of clients, this is a big task. कि कौन से क्लाइंट का कौन सा इनवॉइस कौन से मंथ में क्रेडिट लिया है नहीं लिया है, एंड ऑल दोस थिंग्स आर वर्किंग. नो डुप्लीसिटी ऑफ रिकंसिलिएशन. वी जस्ट हैड 31st December as our due date for 9, and many of you what I have seen is that एक बार रिकंसिलिएशन करते हैं GSTR 1 and 3B फाइल करते वक्त और दूसरा रिकंसिलिएशन करते हैं 9 और 9C करते वक्त. अब ये जो डुप्लीसिटी है रिकंसिलिएशन की, क्लाइंट 2 बार पैसा नहीं देता है हमको, राइट? और किसी का क्लाइंट देता है तो मुझे बताइए, मैं भी वैसा क्लाइंट लेना चाहूंगा. कैसे, कहाँ मिलते हैं वैसे क्लाइंट? सो नोबडी पेज फॉर ट्वाइस रिकंसिलिएशन, एंड ये अगर हम करते हैं तो बहुत बार इट इज अ लॉस फॉर अस ओनली. फास्टर 9C रिकंसिलिएशन एज आई सेड. हाँ, टैक्स ऑडिट और अभी क्या सबके ड्यू डेट श्रिंक हो रहे हैं. Many of you, we've seen that, and the last 6 months was very bad for our tax professionals. Neither the returns were given to us on time, neither the information that the returns would be, the due dates would be extended was given on time. So, ये जो last 6 months गए, I can say from July to December, has been really taxing for us as a chartered accountants. And अगर आप सिस्टम यूज करते हैं तो ये आप लोगों को बहुत काम में आ सकता है. अच्छा, ये मैंने बोला बेनिफिट्स है, बट आप कर क्या सकते हैं? ओके, सो मैं पहले इस चीज पे लेना चाहूंगा कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर पॉसिबल. ओके, सम ऑफ इट वी विल सी टुडे, सम ऑफ इट इफ टाइम परमिट्स मे बी इन द नेक्स्ट सेशन, और कैसे जमता है अपने को. तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन डू in GST in Tally Prime that we are going to discuss. So we are going to have filing of return, that is 1 and 3B. हम दोनों फाइल कर सकते हैं सर. Okay, while I can say 1 filing, it is also upload of 1, okay, and then filing of 1. I'm sorry, 3B का हम खाली upload कर सकते हैं, फाइलिंग नहीं कर सकते हैं. GSTR 1 रिकंसिलिएशन कर सकते हैं, रिकंसिलिएशन ऑफ 2B कर सकते हैं, रिकंसिलिएशन ऑफ 3B कर सकते हैं. ये बहुत लोगों को नहीं मालूम है, एंड इफ यू आर वन ऑफ देम, डू लेट मी नो इन द चैट कि यस वी ऑट टू नो अबाउट GSTR 3B जब हम उस चैप्टर पे आएंगे. ओके, अभी फिलहाल जो नया आया है IMS डाउनलोड इनवर्ड इनवॉइसेस एंड एक्सेप्ट रिजेक्ट, जो भी हमको प्रोसेस करना है वो कर सकते हैं, वो टेली प्राइम से कर सकते हैं. ऑब्वियसली जो जीएसटी से रिलेटेड जो दूसरे कॉमन एरर्स एंड रेक्टिफिकेशंस है वो हम लोग देखेंगे, और टैली में जो हम लोग कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल द गैम्यूट और द यूनिवर्स ऑफ द थिंग्स दैट वी ऑल कैन डू इन टेली प्राइम.
So at this point I will take some of the chat question. Okay, nothing in the question till now. वैसे मैंने प्रिपेयर किया है कि मुझे क्या बोलना है, बट मैं सुनना चाहूंगा आउट ऑफ दिस 70 पार्टिसिपेंट्स, व्हाट लुकिंग एट दीज 7-8 थिंग्स, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू वुड लाइक टू लर्न? ऑलमोस्ट ये सारी चीजें मैंने आज के लिए प्रिपेयर की है, तो आप क्या पहले सीखना चाहोगे इन जस्ट 5 seconds? व्हाट यू विल लाइक टू लर्न? और common errors. Okay, reco of to be, mainly reconciliation. Okay, okay. IMS, Gautam sir. Okay, IMS and 3B. Wonderful. चलो अच्छी बात है. It's so nice to see filing and reconciliation. Thank you, Anish bhai. Many of you said IMS. Okay. चलो, I'll take up each one of those. एक एक करके लेते हैं. And thank you for sharing your inputs. Keep doing this inputs. आप लोगों का input होता है तो that is an oxygen. हम लोगों को जो speakers होते हैं ना, हम लोगों को ये blank screens रहता है, सामने कोई दिख नहीं रहा है. So it is a little bit challenging. And when you keep on chatting, it is an oxygen for us. So friends, many of you said reconciliation, and to me also reconciliation is an important task, because 3B फाइल कर रहा है, बट 3B फाइल करने के पहले रिकंसिलेशंस को मालूम होना जरूरी है. एंड रिकंसिलेशन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं जीएसटी रिटर्न इफेक्टिव डेट. एनी ऑफ यू अवेयर ऑफ व्हाट इज दिस जीएसटी रिटर्न इफेक्टिव डेट? जीएसटी रिटर्न इफेक्टिव डेट क्या है, कुछ आइडिया? ये कहाँ मिलती है, कहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट है, क्या वर्किंग है, ये इसका कुछ आइडिया है आपको? एंट्री रिफ्लेक्ट्स इन द रिटर्न. यस, you're right sir, but where do you find that and what is the significance of that? Why am I saying that? The reason is that Tally is the accounting and inventory software. Tally के अंदर जो सारी वर्किंग होती है, आप जब ट्रायल बैलेंस देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं या स्टॉक समरी देखते हैं, ये सब जो बुक्स है, इन्वेंट्री और अकाउंटिंग की बुक्स है, ये चलती है आपके ट्रांजैक्शन डेट के हिसाब से, राइट? ट्रांजैक्शन डेट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसपे आपको ट्रायल बैलेंस और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आपकी बाकी सारी रिपोर्टिंग है. अभी हम जब जीएसटी में जाते हैं तो जीएसटी में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस रिटर्न इफेक्टिव डेट. रिटर्न इफेक्टिव डेट आपकी रिटर्न में ये ट्रांजैक्शन कभी रिफ्लेक्ट कर रहा है. ओके, इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन यू आर फाइलिंग 1, व्हेन यू आर फाइलिंग रिकंसाइलिंग 2B, व्हेन यू आर फाइलिंग 3B, आपकी ये तीनों रिटर्न में, एंड टू सम एक्सटेंट अर्लियर इट वाज 2B, ये तीनों रिटर्न में कब रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये ट्रांजैक्शन कब रिफ्लेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको अंडरस्टैंड करना है. ओके, अब ये आता कहां से है? हाउ इज इट जनरेटेड? इट इज जनरेटेड इन 2 ways. How is it generated? It is generated in 2 ways. One, जब हम कोई रिकंसाइल करते हैं, GSTR1 रिकंसाइल करते हैं, तब वो डेट ले लेते हैं जो सेल्स के ट्रांजैक्शंस हैं, इनकम के ट्रांजैक्शंस हैं, तो वो टैली सिस्टम जब हम रिकंसाइल करते हैं तो जीएसटी रिटर्न जो फाइल की है हमने जीएसटीएन पोर्टल पे, तब वो आ जाती है. ठीक है. दूसरा, कोई चीज को हम मैन्युअली भी उसको अपडेट कर सकते हैं. वी कैन डू इट इन बोथ द वे. One, it is automated, and second, it is done manually. How it is done manually?
when I will start tally, it will be the first thing that I will be showing it to you. Very effective when we are talking of one, very effective when we are talking of to be. Okay, ये दोनों जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं ना, तब वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है तब? बिकॉज जीएसटी में ट्रांजैक्शन डेट के पहले भी रिटर्न में आ सकता है, बाद में भी रिटर्न में आ सकता है. मैं कंफ्यूज कर रहा हूं क्या? कि आपका रिटर्न इफेक्टिव डेट पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है. कैसे? आई विल टेल यू हाउ. सिंपल एग्जांपल. एक जो GSTR1 आपने सपोज फाइल कर दिया है, ओके, एंड GSTR1 फाइल कर दिया 1 महीने का. अब उसमें कुछ अमेंडमेंट है, तो आपने उस महीने में फाइल कर दिया. सपोज दिसंबर का मंथ है, 10 जनवरी 11 जनवरी के पहले आपने GSTR1 फाइल कर दिया है, और उसका 3B आपने 20-21 जनवरी को पे कर दिया है. ओके, इन द मंथ ऑफ February somebody says that अरे यार मेरे गलत GSTN डाल दिया आपने. पॉसिबल है, राइट? तो आप क्या करेंगे? GST रिटर्न इफेक्टिव डेट फॉर दैट ट्रांजैक्शन, ऑल्दो मैंने GSTR1 की लायबिलिटी में ले लिया है, बट और 3B में भी ले लिया है, बट मेरे को GSTR1 अमेंडमेंट फाइल करना है, तो उसके लिए मैं GSTR1 का डेट मैन्युअली चेंज करूंगा. तो ये पोस्ट हो गया. ओके, समटाइम्स इट इज प्रायर ऑल्सो, एंड इट कैन बी एनीथिंग. मतलब जीएसटी रिटर्न में आपका पहले भी आता है ट्रांजैक्शन डेट के, और जीएसटी रिटर्न के बाद में भी आ सकता है. ओके, कैन बी मैन्युअली पोस्ट दिस? यस, इट कैन बी मैन्युअली डन इट. आई विल शो यू हाउ. ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? सो यू कैन पुट इट क्लियर. और इसमें कुछ और आपको वर्किंग करना है. ओके, चिराग सेज रिपीट. ओके चिराग भाई, मैं जब जी टैली का कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, तब फिर से बता दूंगा. अगर मतलब रिटर्न इफेक्टिव डेट इज नथिंग बट अ डेट इन अ ट्रांजैक्शन विच कैन बी which we can get it in 2 ways. One, the system gives us when we are reconciling it. टैली का जब हम आगे रिकंसिलेशन देखेंगे तो सिस्टम खुद दे देता है उसको जीएसटी रिटर्न इफेक्टिव डेट. एंड द सेकंड इज वी कैन पुट इट मैन्युअली, और वो मैन्युअली का एग्जांपल मैंने आपको बताया था. ओके, ये जीएसटी रिटर्न इफेक्टिव डेट होने के बाद में एक दूसरा कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड जीएसटी स्टेटस, विच इज आइडियली सिस्टम इनफर्ड. अगर हमने ऑटोमेटिकली रिकंसाइल कर दिया है, वर्किंग कर दिया है, तो सिस्टम इनफर्ड, which could be excluded, exported, not uploaded, reconciled, uploaded. ये सब आपको आएगा जीएसटी स्टेटस में. मैं अभी ज्यादा आपको क्या बोलते हैं ज्ञान नहीं बांटता हूं. ये सिंपल है अपने आप में, ये दिखने जैसा है. कोई मतलब कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली बताते हैं. बट मैं जस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो मैं बोला स्टार्टिंग में आपको ले लेता हूं यहाँ पे. ओके, so we can go to the IMS and the to be reconciliation, but ये थोड़ा सा 2 मिनट का थियोरी और लेना चाहूंगा, because I felt being 17th of January, आज अगर 17 जनवरी है, तो many of you would be filing the 3B. अब वो 3B फाइल करते वक्त आपको क्या क्या चीजों का स्टेप्स लेना चाहिए, तो ये स्लाइड मैंने थोड़ा सा ऐड किया है आज के वर्किंग के हिसाब से. सो जनरली आपके खुद के एसओपीज बने हुए रहेंगे 3B के. ये मेरे स्टेप्स है. इट कैन बी मोर, आपके लिए और ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. बट आपको अगर इसमें कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए या किसी भी चाहिए, तो प्लीज गो एंड पुट इट इन द चैट कि क्या आपको वर्किंग चाहिए उसमें. ओके, ensure your IMS is accepted, to be is reconciled and recomputed, trial balance value and GST value return values are matching, GSTR1 is reconciled. अभी तो फाइल किया था 10 दिन पहले, बट फिर भी रिकंसाइल किया हुआ है कि नहीं, कंफर्म कर लो. There could be possibility of posting of stat adjustment entries like RCM entries, reverse charge mechanism entries, reduction in input credit, output tax liability के stat adjustment entries आपको कर लेने चाहिए. Entries not reflected in 2B are transferred to future ITC which can be taken, मतलब बहुत लोग करते भी होंगे. And output against input entries are posted and GSTR liability is transferred to GST liability. सर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आपको चाहिए मैं प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दूंगा. आई एम नॉट इन द व्हाट्सएप ग्रुप जो लोकेश भाई का है,
बट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मेरी तरफ से इनपुट है कि आपको इस तरह से वर्किंग करना चाहिए। अब इसमें जो स्टेप्स है, ओके, 1 2 3 4 4 हम लेने वाले हैं। स्टेट एडजस्टमेंट थोड़ा थोड़ा लेंगे, वाइल टाइम की कमी है, हम सब नहीं ले पाएंगे, बट थोड़ा थोड़ा लेंगे इसका। और यही आज का सार है कि आज आपको ये चीज सीखने को मिलेगी। सो एक्साइटेड, यस नो? एक्साइटेड होगा तो प्लीज पुट इट एक्साइटेड टू सी मोर ऑन दिस। मैं थोड़ा होमवर्क कराता हूं। या हिरेन गाला, वाओ, गौतम सर, जितेश, वाओ वाओ, थैंक यू फॉर गेटिंग इट। और ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से अभी मैं स्क्रीन को बदलूंगा और टैली में आ जाऊंगा, राइट? अभी मैं पीपीटी पे नहीं रहूंगा ज्यादा, क्योंकि पीपीटी के लिए नहीं आज का लेक्चर है। आज का लेक्चर टैली में क्या करना है उसके लिए है। सो लेट्स, आई विल स्टॉप द, एक मिनट। यस, टैली का स्क्रीन विजिबल? प्लीज पुट इट, अगर विजिबल है तो। इंडियन गाला, यस 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 यस, ओके, सो विजिबल है तो वंडरफुल है। लेट्स डू द फर्स्ट थिंग एज IMS। ओके, सो IMS हम लोग को डाउनलोड एंड अप करना है, ओके, और टू बी रिकंसाइल करना है। ये 2 स्टेप करना है। अब करेंगे कैसे? मैंने मेरा ही डेटा लिया है। वी आर एज अ सेड 5 स्टार पार्टनर। ये लाइव डेटा नहीं है, ये 4 दिन पहले का बैकअप लिया है मैंने। ओके, सो फर्स्ट थिंग मैं है ना क्या करता हूं कि पहले जीएसटी पोर्टल पे जाता हूं। ओके, लेट मी शो कि कहां से मैं जीएसटी पोर्टल पे जाता हूं। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट थिंग मैं जाता हूं, आई एम सॉरी, दिस अकाउंट इज लॉक्ड फॉर द मोमेंट। सो मेरे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। ओके, जीएसटी पोर्टल पे जाके आपको प्रोफाइल में जाके खाली यू हैव टू एनेबल एपीआई एक्सेस। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इट। और वही मेरे को जीएसटी पोर्टल पे दिखाना था, और कुछ भी नहीं था उसमें दिखाने के लिए। तो जीएसटी पोर्टल पे हम लोगों को एपीआई एक्सेस करने को अलाउ करना है। ओके, उसमें फिर वो 6 आवर्स या 30 डेज का आता है ऑप्शन, तो यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ देम, दैट्स फाइन। ओके, एंड लेट्स नाउ गो टू द ऑप्शन ऑफ Alt Z exchange all GST option,
एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डाउनलोड IMS इनवर्ड इनवॉइसेस। अच्छा, ये सबसे पहले मैं बता दूं, आपको रिलीज 7 यूज करना है, ओके। और 6.1 भी चलेगा, बट आपको लेटेस्ट रिलीज यूज कीजिए, बिकॉज उस IMS में भी सर्टन नई चीजें आई हैं जो हम लोग लास्ट में लेके जाएंगे। बट फिलहाल यू हैव टू यूज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ टैली, ओके। सो डाउनलोड करने के लिए, अगर हम डाउनलोड करने के लिए जाएंगे तो वो OTP मांगेगा, GST रिलेटेड, ओके। सो IMS इनवर्ड इनवॉइसेस डाउनलोड हो रहे हैं, ओके। अल्ट जेड एक्सचेंज में गया था और वहां से मैंने डाउनलोड IMS इनवॉइस किया। एंड अगर एक बार ये डाउनलोड हो जाता है तो मुझे क्या करना है, अल्ट अल्ट जी IMS, ओके, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जाना है एंड यहाँ पे देखना है। सो यू विल कम टू नो दैट आउट ऑफ द ट्रांजेक्शन, about 86 transaction, one I can take 112 to 3112, okay. So about 20 transactions are there which are not there in the books but they are on the portal. How do I come to know? ये जो ब्लू में है ये आपके पोर्टल की वैल्यूज है, और जो ब्लैक में है वो आपकी बुक्स की वैल्यूज है। यू कैन गो इनसाइड एंड यू कैन सी दैट ईच ऑफ दीज इनवॉइसेस आपका क्या वर्किंग है, ओके। सो अगर आपको एक्सेप्टेड करना है, पोटेंशियल मैचेस करना है, अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल, मतलब ये IMS का एक बार आ गया ना, एक बार डिटेल्स आ गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मतलब अगर सपोज यू आर सेइंग दैट ये इनवॉइस खाली पोर्टल पे है बट मेरे को नहीं चाहिए, आई वांट टू रिजेक्ट दिस इनवॉइस, ओके, तो इसको स्पेस बार करके सेट एक्शन स्टेटस करना है। सेट एक्शन स्टेटस किया तो यहाँ पे IMS एक्शन आप 4 एक्शंस ले सकते हैं। आइदर यू कैन एक्सेप्ट इट, यू कैन कीप इट पेंडिंग, यू कैन रिजेक्ट इट, और नो एक्शन। अब नो एक्शन का मतलब क्या हो गया कि जब आप 3B फाइल करने के लिए रिकम्प्यूट करेंगे 2B को, तो दैट वुड बी काउंटेड एज एन एक्सेप्टेड, ओके। सो आइडियली यू हैव टू टेक 2 पॉजिटिव एक्शन। आइदर यू कैन कीप इट पेंडिंग, मेरे को मालूम नहीं है ये इनवॉइस मेरे लिए है कि नहीं है, और यू कैन रिजेक्ट इट, ओके। एक्सेप्टेड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सिस्टम से एक्सेप्ट भी होके आ सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आइदर ऑफ दिस 4 स्टेटसेस यू कैन कीप इट, ओके। सपोज आई कीप दिस एज रिजेक्टेड, सो ये रिजेक्ट करने के बाद में ये एक नया ऑप्शन है कि क्यों रिजेक्ट कर रहा हूं, नॉट इन टेक इनवॉइस, ओके। सो ये रिजेक्ट किया है मैंने, तो ये रिजेक्ट क्या पोर्टल पे किया है मैंने या क्या मेरी बुक्स में किया है? सो इट इज डन ऑन माय बुक्स, इट इज नॉट डन ऑन द पोर्टल। हाउ वुड आई इंश्योर दैट इट इज डन ऑन माय बुक्स? इधर मैं अल्ट जेड एक्सचेंज करूंगा, ओके। अगर मेरे को पोर्टल पे फिर से भेजना है ये ऑप्शंस, तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आता है अपलोड IMS इनवर्ड इनवॉइसेस। ये जो मैंने एक्सेप्ट कर दिया है, जो मैंने रिजेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपलोड IMS इनवर्ड इनवॉइसेस। तो इसको एक बार करने के बाद में आई हैव टू डू द रिकम्प्यूट ऑफ GSTR 2B। इसको मैंने रिजेक्ट किया था, मैं फिर से एक्शन कर देता हूं बिकॉज आई हैव टू एक्सेप्ट इट, इट्स नॉट रिजेक्टेड। ये मैं 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकता हूं, और ये एक्सेप्ट करने के बाद में आपको अल्ट जेड एक्सचेंज में जाके आपको खाली ये GST ऑप्शन में जाके इसको आइदर अपलोड करना है, अपलोड IMS इनवर्ड इनवॉइसेस, और अगर उसके पहले वाला जो स्टेटस था वो ये वर्किंग था, ओके, वैसा था, राइट। सो आप ये कितनी बार कर सकते हैं? n नंबर ऑफ टाइम्स, ओके। आप ये n नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं, अपलोड एक्सेप्ट रिजेक्ट n नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं। और इसका मैंने थोड़ा थियरी बनाया है कि IMS कैसा है, कब से लागू हुआ, क्या वर्किंग है,
पर वो थियरी हम लोग टाइम होगा तो देखेंगे, नहीं तो हम लोग का जो टाइम है ना, वी शुड बी नॉट बी वेस्टिंग ऑन दैट, मतलब थियरी प्रैक्टिकली मनी ऑफ आवर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ओनली, सो आई शुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम ऑन द थियरी. फाइन. सो दिस इज अबाउट माय आईएमएस. डाउनलोड हो गया. अब डाउनलोड होने के बाद में हमने आइदर उसको एक्सेप्ट किया या उसको रिजेक्ट किया या उसको पेंडिंग रखा, आइदर ऑफ इट. ओके, क्या करना है आपको? वाउचर वाइज बटन में जाके, आईएमएस में डिटेल्स में जाके वाउचर वाइज बटन में जाके आपको इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हैं. यू कैन सिलेक्ट ऑल टुगेदर कंट्रोल स्पेस एंड यू कैन सेट द एक्शन फॉर ऑल ऑफ देम टुगेदर इफ यू विश. ये करना नहीं है, बट आपको जो है वो वर्किंग कर सकते हैं. ओके, सो ये एक ऑप्शन आपको आईएमएस अगर समझ में आ गया है तो आईएमएस इज फाइन ऐसा करके आप प्लीज मैसेज कर दीजिए. दोज हु आर यूजिंग व्हाइट बोर्ड प्लीज डिलीट. आई थिंक लोकेश भाई अगर आप हो तो व्हाइट बोर्ड का कंट्रोल कर दीजिए ना, बिकॉज दैट इज गिविंग So let me, I am checking it. या व्हाइट बोर्ड का कंट्रोल बंद कर दीजिए, बिकॉज Okay. इनएडवर्टेंटली समबडी उन लोग क्या है टच स्क्रीन यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट ये आ रहा है. हाँ मैं देखती हूँ सर. या प्लीज, सो नाइस ऑफ यू. ओके, राइट. सो फ्रेंड्स, आईएमएस इज फाइन. ये आप व्हाट इज द एक्शन फॉर मिसमैच शुड बी टेकन इन आईएमएस. ओके, परेश कुमार, व्हाट इज द एक्शन? सो अगर मिसमैच है तो मिसमैच का रीजन देखिए आप, क्या है रीजन. ओके, वो रीजन पहले वो देखिए. अगर मिसमैच का रीजन है कि अब ये जैसे ये एलकॉम का है. ओके, लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस. ये एलकॉम में आया, ये मिसमैच में है सर्टेन चीजें. अब ये मिसमैच का रीजन क्या है? 38 और 39. मतलब आपका ये आईजीएसटी का अमाउंट इट शुड हैव बीन 38 पैसा बट इट इज 39. ओके, सो आप यहां पे जाके आप उसको 38 कर दीजिए, करेक्ट कर दीजिए, कंट्रोल ए. सो इट इज नाउ रिकनसाइल्ड. ओके, सो आपको मिसमैच का रीजन हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट डेट मैच नहीं कर रहा हो सकता है आपका ये इनवॉइस अमाउंट में अभी इसमें टैक्सेबल अमाउंट मैच नहीं कर रहा है. 2769 और 23. ओके, टैक्स अमाउंट मैच कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एंटर किया, तो 4 कर दिया. वो भी रिकनसाइल हो गया. सो नो एक्शन टेकन, नॉट नीडेड. ओके, सो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये अपन 2B में भी यही करने वाले हैं. 2B का जब हम डाउनलोड करेंगे तो वहां पे भी ये आएगी. बट आपने अगर एक बार आपकी बुक्स को करेक्ट कर दिया है तो आपको दूसरी बार करेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 2B में भी आपका वर्किंग हो जाएगा. ओके, अमित भाई, यू डू नॉट हैव टू टेक द, यू हैव टू फर्स्ट डू डायरेक्टली, आपको एक्शन बुक्स में ही करना है. ये आप पोर्टल पे नहीं जा रहे हो. ये जो मैंने अभी चेंज किया है वैल्यूज, वो पोर्टल पे नहीं, मैं मेरी बुक्स में ही चेंज किया है. जो पोर्टल पे एक्शन लेने हैं वो मैं बुक्स में लेके फिर अपलोड कर सकता हूं आफ्टर आई गेट इट चेक्ड. ओके, अभी ये जैसे ये 3 ट्रांजैक्शन, इसमें ये 3 ट्रांजैक्शन अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल आ रहा है, बुक्स में नहीं आ रहा है. ओके, तब मैं क्या करूंगा, इनको आप चाहे तो मैं या तो रिजेक्ट कर सकता हूं या तो उस बुक्स में नहीं है तो पहले मैं बुक्स में एंट्री करूं उनकी, एंड देन आई विल डू इट. So you need not go on the portal for accepting or rejecting it. It is a big pain to do it on the portal. Okay, you can do it on Tally only. ये Tally में ही हम IMS कर रहे हैं. We are not going on the portal. ये Tally में IMS का एंट्रीज रिकनसाइल करके अपडेट करके फिर हम जो मैंने जो लास्ट वाला स्टेप बताया था Alt Z एक्सचेंज में,
अपलोड द IMS इनवर्ड इनवॉइसेस, जो फाइनल होगा, जो रिकंसाइल होने के बाद में आपने रिजेक्ट कर दिया है, या जो आपने पेंडिंग रखा है, या जो आपने एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्टेड में रखा है, ये तीनों चारों स्टेटस आपके ये अपलोड हो जाएंगे व्हेन यू डू दिस एक्शन ऑफ अपलोड IMS इनवर्ड इनवॉइसेस। ओके, ये आप इधर करके फिर इधर एक्सेप्ट करने को आता है ऑप्शन, मैं नहीं जा रहा हूं बिकॉज इट विल बी अपलोडेड ऑन माई लाइव पोर्टल, आई कैनॉट गो राइट नाउ, बट स्टेप्स उसमें और दूसरा कुछ भी नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। No, Narayan sir, if accepted, if the transaction is not there in Tally, it will not get automatically recorded. We will have to record it manually. Saranya, yes, this type of reconciliation we have to do it manually, AO dash and slash. So unfortunately, we'll have to do it manually only. But what we can do is that we can inform Tally that please ignore dash or slash. So that is an option which is there. Like we can उसको अपडेट कर सकते हैं। मिसमैच लिखा हुआ कैसे आ रहा है? It is understood by Tally only when you have downloaded the IMS from the GST portal. Then it has analyzed that what is your books of accounts, and based on the data which has been downloaded and the books of accounts, उसमें automatically हार्दिक भाई उसमें mismatch आया है। ओके ओके, सो ये जो एक्शन है IMS का, और जो इतना सीमिंगली कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, थैंक्स टू टैली दैट दे हैव मेड इट एक्सट्रीमली सिंपल, बिकॉज पोर्टल पे जाके करना, इतने सारे इनवॉइसेस में ढूंढना, रिजेक्ट करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। ये आपके एक क्लिक में हो जाता है। ओके, नाउ वी गो टू द टू बी, अल्ट जी, GSTR टू बी रिकंसिलेशन। सो टू बी रिकंसिलेशन में मैंने टू बी का डेटा नहीं लिया है। अच्छा, ये IMS का आपका एक्सेप्ट रिजेक्ट हो जाता है ना, उसके बाद में आपको क्या करना है, अल्ट जेड GST ऑप्शन में रिकम्प्यूट टू बी। ओके, सो जो आपने रिजेक्ट कर दिया है दैट विल गेट रिमूव फ्रॉम योर टू बी। इसी से आपका टू बी जो है फ्रेश टू बी बन जाएगा आपका। ओके, सो ये रिकम्प्यूट का ऑप्शन अभी हाल ही में आया है। So this is the information that you are sending into the portal. मैंने लोकेश भाई को इनवॉइस किया ही नहीं है, एंड फिर भी उनको किसी और ने मेरा GST नंबर, मतलब उनको आ गया ये परचेज, मतलब हमारा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, और फिर भी उनको मेरा इनवॉइस चला गया है गलत GST नंबर डाल के, he can just reject it. Okay, and then it would be coming in my GSTR1 के भाई ये पोर्टल इससे रिजेक्ट हो गया है, सामने वाले से रिजेक्ट हो गया है। ओके, now once we go with this 2B, but we can go for GSTR 2B, but अभी फिलहाल मैं डाउनलोड GST रिटर्न्स में जा रहा हूँ, और डाउनलोड GST रिटर्न में अभी जैसे आपने देखा 47 ट्रांजेक्शन्स थे, और मैं इसको डाउनलोड करने के लिए रख रहा हूँ। ये अगर आपने देखा, मेरे को वापस से उसने OTP के बारे में नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मेरे पोर्टल पे जो मैं आपको दिखाना चाहता था उसमें वैल्यूज में GSTR API में मैंने 6 घंटे का ऑप्शन रखा हुआ है, 6 आवर्स का। ओके, so download is successful for Maharashtra registration, and we can see that these many invoices are, ये पार्टी वाइज मेरे को आ जाता है इंफॉर्मेशन। सो ये जो केशव है इसके 31 ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली रिकंसाइल हो गए। आपने अगर पहले देखा था, इसके पहले वाला जो स्क्रीन था उसमें खाली 47 ट्रांजैक्शन थे, ये 65 ट्रांजैक्शंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये टोटल अनरिकंसाइल्ड है, उसमें से खाली एक ये रिकंसाइल है, बाकी सब में मुझे कुछ ना कुछ काम करना जरूरी है पार्टी वाइज। आई कैन ऑल्सो गो वाउचर वाइज, F5 वाउचर वाइज। What I normally do is that I go voucher wise and I export this summary into Excel. ये मैं Excel में इस पूरे समरी एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ताकि मुझे मालूम पड़ जाता है कि कौन सी पार्टी का क्या नाम है, क्या इनवॉइस नंबर है और उसका क्या वैल्यू है।
फ्रॉम एक्सेल आई कैन क्रिएट द डेटा इनटू टैली। टैली के अंदर हमने एक्सेल टू टैली का भी शायद सेशन लिया होगा लोकेश भाई, तो उसमें भी कुछ कुछ बातें बताई होगी कैसे हम ऑटोमेटिकली एंट्री क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम एक्सेल, बट आई डू इट मैन्युअली बिकॉज कभी लेजर सिलेक्शन है, जीएसटीएन सिलेक्शन है या उसका अपडेट है तो वो मालूम पड़ जाता है अपने को। ओके, सो हम एक एक करके एंट्रीज मैन्युअली टैली में पोस्ट कर सकते हैं। टीडीएस से टोटल अमाउंट में मिसमैच आता है तो कैसे सॉल्व करें? यू कैन ऑल्सो डू इट मैन्युअली, स्पेस बार करके आप ये जब कोई ट्रांजैक्शन आता है, अभी जैसे ये भवानी का है, इधर मैं F12 में है ना, और एक ऑप्शन है शो पोटेंशियल मैचेस बिटवीन बुक्स एंड पोर्टल, इसको यस करता हूं। सो ये पोटेंशियल मैचेस आते हैं। अब इसमें स्पेस बार करके मैं इसको एक्सेप्ट भी कर सकता हूं। स्पेस बार किया और इधर शो, अभी ये जो ट्रांजैक्शन है ये मेरे को लगता है ये पोटेंशियल मैच है 42,900 42,900, तो मेरे को पोर्टल वाली वैल्यू को कुछ नहीं करना है। ये वाली अवेलेबल ओनली इन बुक्स है ना, उसको स्पेस बार करके सेट जीएसटी स्टेटस, तो सिस्टम इन्फर्ड है, ये मिसमैच में है, अवेलेबल ओनली इन बुक्स सिस्टम इन्फर्ड है, बट मैं इसको मैन्युअली रिकंसाइल कर सकता हूं। तो जो आपके टीडीएस के कारण से या किसी कारण से आपको लगता है कि अगर ये ट्रांजैक्शन मैंने पोस्ट कर दिया है ऑलरेडी एंड मेरे को ये मिसमैच में नहीं रहना चाहिए, तो ये मिसमैच में से निकल सकता है ऐसे ही। ठीक है, सिमिलरली दिस ट्रांजैक्शन ऑल्सो स्पेस बार किया, ऑल्ट एस सेट जीएसटी स्टेटस, मेरे को वो 1 पैसे का 2 पैसे का डिफरेंस का कोई मतलब नहीं निकलता, आई वॉन्ट टू रिकंसाइल इट। ओके, सो ये मैन्युअली रिकंसाइल किया है। जो मैंने आपको सेकंड कॉन्सेप्ट बोला था जीएसटी स्टेटस का, तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट है जीएसटी स्टेटस का सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपने ये वर्किंग किया। तो मैंने आपको बताया था कि आप कभी भी जो है ये जीएसटीआर 1 2A 2B का जो है आपने जो सिस्टम से आया है तो वो सिस्टम का डेट डाल दिया, मैन्युअली रिकंसाइल भी कर दिया। आपको चाहे कि आप भी अपनी डेट डालना चाहो, ओके, सो समटाइम्स यू हैव पोस्टेड द ट्रांजैक्शन इन द मंथ ऑफ मार्च, बट आपको आपके टू बी में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है जून में या जुलाई में। ओके, सो अकाउंटिंग डेट मार्च है, टू बी डेट जून है। ओके, एंड अकॉर्डिंगली सिंस टू बी डेट इज जून, आपकी 3B डेट भी जून हो जाती है। हाउ टू हैंडल दोज ट्रांजैक्शन, लेट मी शो यू दैट। ओके, कोई भी ट्रांजैक्शन में आप जा सकते हैं, जैसे मैं ये ट्रांजैक्शन में जाता हूं, सपोज ये अवेलेबल ओनली इन बुक्स है, ये ट्रांजैक्शन है। अब ये ट्रांजैक्शन का मेरे को डेट चेंज करना है, उसको आगे की डेट का लेना है, तो यहां पे कंट्रोल आई करके मोर डिटेल्स है, उसमें शो मोर, और फिर मेरे को टाइप करना है जीएसटी रिटर्न इफेक्टिव डेट। ओके, अब जीएसटी रिटर्न इफेक्टिव डेट ये किसके लिए चेंज होगा मालूम नहीं है, तो इधर और एक ऑप्शन है F12 में, चेंज रिटर्न इफेक्टिव डेट फॉर सेपरेटली फॉर अदर्स। तो 2A के लिए क्या डेट है, 2B के लिए क्या डेट है और 3B के लिए क्या डेट है, ये आपको आपके हिसाब से डाल सकते हैं। Getting it, GST return effective date. The first concept that I showed or discussed today is this. आप आपके हिसाब से मोर डिटेल्स में जाके शो जीएसटी रिटर्न इफेक्टिव डेट आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वेरी यूजफुल व्हेन, जो मैंने मार्च का एग्जांपल लिया और आपका जो रिफ्लेक्शन अप्रैल में, मई में या जून में होता है, वेरी यूजफुल व्हेन वी आर फाइलिंग द अमेंडमेंट ऑफ जीएसटीआर 1, उस वक्त भी ये बहुत काम में आता है, क्योंकि 3B के लिए आपका डेट लास्ट मंथ का ही रहता है, बट 1A अमेंडमेंट आप ये जीएसटीआर 1 का डेट चेंज करते हैं,
उसके हिसाब से टैली के अंदर GSTR1A अमेंडमेंट बन जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना जरूरी है और जो आपके लिए बहुत बहुत बेहद काम का है, राइट। सो GST रिटर्न इफेक्टिव डेट का कॉन्सेप्ट हो गया, IMS का कॉन्सेप्ट हो गया, रिकंसाइल हो गया। अब बचा क्या है, सेम वे में जैसे हमने GSTR1 2A 2B रिकंसाइल किया, और सेम वे में हम लेट मी चेक, GSTR1 रिकंसिलेशन किया है। इसमें देखिए 133 ट्रांजैक्शन है, अभी सब अनरिकंसाइल्ड दिख रहा है। मैं अल्ट जेड एक्सचेंज किया, ऑल GST ऑप्शन गया, डाउनलोड GST रिटर्न किया, कॉन्फ़िगर में जाके इधर ऑप्शन है भैया, मेरे को ऑल GST रिटर्न्स भी कर सकता हूँ, GSTR1 भी कर सकता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, दैट रिटर्न पीरियड जो टैली 5 के पहले ही था, आप लोग एक एक मंथ का डाउनलोड करना पड़ता था पोर्टल पे जाके जेसॉन, और यहाँ पे आके इंपोर्ट करना पड़ता था, बट नॉट एनी मोर। फ्रॉम रिलीज 6 वी कैन take 1 year or 1.5 year together. डिसाइड कर सकते हैं। ये अभी मैंने December 25 to December 25 लिया, यू कैन टेक इट April to December. When you had done this audit last year का 24-25 का, you could have selected the entire period together, और आपका जो GSTR1 का डेटा है, GSTR2B का डेटा है और 3B का डेटा है, वो टैली में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया होता अगर आपने ये सिलेक्ट किया होता पूरे साल का। अभी फिलहाल मैं टाइम की कमी है तो मैं दिसंबर का ही डेट ले रहा हूं, और दिसंबर का वर्किंग करके कंट्रोल ए एंड इधर मैं डाउनलोड बटन दबाता हूं। परेश भाई, डाउनलोडेड टू बी वुड बी स्टोर्ड इन, मतलब टैली के टेम्पररी फाइल्स में स्टोर होता है सर, आपके ट्रांजैक्शन के साथ में लिंक होकर टेम्पररी फाइल में स्टोर होता है। दैट टू बी यू कैन मैन्युअली, मतलब उसमें रीसेट भी कर सकते हो जाके, ओके, नॉट नेसेसरी दैट यू नो उसका एक बार डाउनलोड हो गया तो दूसरी बार नहीं कर सकते, ओके। सो ये एक टैली के डेटाबेस में इम्बाइब हो जाता है, बट आपके ट्रांजैक्शन के डेटा को कुछ भी टच नहीं करता है अनलेस एंड अनटिल यू आर अपडेटिंग इट ऑन योर ओन, वैसा। So Amit bhai, where data volume is more, yes we can do it on one by one only, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप छोटा छोटा पीरियड ट्रांजैक्शन लीजिए, मंथ का स्टार्टिंग लीजिए। जैसे अभी ये मैंने आपको 2 मिनट पहले दिखाया था, ये कुछ भी नहीं था बुक्स में, ये पूरे जो मेरे अप्रैल के दिसंबर के ट्रांजैक्शंस हैं 133 ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली आ गए इसमें, ओके। सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू गेट इट एट वन गो, ओके। सारे ट्रांजैक्शंस एक बाय एक ऑटोमेटिकली रिकंसाइल हो गए। मैन्युअली रिकंसाइल करना इज गोइंग टू बी पेन फॉर एनीबडी, लेट्स नॉट गेट इट, सिस्टम कर रहा है। हाँ, ये कर सकते हैं कि अगर आपको 7-7 दिन का डाउनलोड करना है, आई लेट मी चेक, कैन आई हैव अ पीरियड ऑफ 7 days, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। नहीं होगा शायद, वो मंथ टू मंथ ही चलता है बिकॉज GST पोर्टल में डेटा नहीं आता है। सो बट आप एक एक महीने का डाउनलोड कर सकते हैं। हाउ टू नो ऑल परचेज बिल आर नॉट अपलोडेड इन 2B? सर ये जब 2B के रिकंसिलिएशन रिपोर्ट में जाओगे तो आपको बताता है ना, सामने ब्लू वाले जितने भी हैं अवेलेबल इन बुक्स, ये 2B रिकंसिलिएशन रिपोर्ट में गए थे हम लोग, तो ये 47 ट्रांजैक्शन बुक्स में है, 65 ट्रांजैक्शन पोर्टल पे है, ओके। सो दैट मीन्स दैट इनके बीच में गैप है, वो गैप को आपको सुधारना है। आइदर आपको मिसमैच निकालना है, या आपकी ओनली इन बुक्स, ओनली ऑन पोर्टल वाली बुक्स है, एंट्रीज है, उसको ओनली बुक्स में भी एंटर करना है। हार्दिक भाई, आई होप आई हैव क्लैरिफाइड। सो हमने 1 का रिकंसिलिएशन देख लिया, 2B का रिकंसिलिएशन देख लिया, हमने ये भी देखा IMS डाउनलोड अपलोड कैसे करते हैं, क्या वर्किंग कर सकते हैं, राइट। सो आज का जो मेजर पर्पस है दैट हैज बीन सॉल्व्ड। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप ये सब चीजें करेंगे तो आपका इसका इंपैक्ट आएगा कि आपको 3B फाइल करना है। तो लास्ट मंथ का आप 3B भी डाउनलोड करके
रिकंसाइल कर सकते हैं, क्योंकि रिकंसिलेशन की बात चल रही है। तो मैं एक बार अल्ट F2 111 3011, मेरे को अगर ये डेटा को रिकंसाइल करना है तो वो भी मैं कर सकता हूं। ये रिटर्न व्यू में जाते हैं, जनरली हम रिटर्न व्यू में ही देखते हैं, ये 3B का नॉर्मल व्यू दिखता है। अगर मुझे देखना है कि मेरा ये लास्ट मंथ से रिकंसाइल है कि नहीं है, तो आई कैन गो इन दिस बेसिस ऑफ वैल्यू, मेथड ऑफ शोइंग कंपैरिजन ऑफ बुक्स एंड पोर्टल वैल्यूज। ओके, सो अगर मैंने 3B डाउनलोड किया, अभी ये 3B डाउनलोड किया हुआ नहीं है, इसके लिए पोर्टल वैल्यूज नहीं दिखाया है। सो व्हाट आई कैन डू, Alt Z, एक्सचेंज, ऑल GST ऑप्शन, डाउनलोड GST रिटर्न्स, कॉन्फ़िगर में जाके इधर 3B सिलेक्ट करता हूं। ओके, एंड इधर पीरियड सिलेक्ट करता हूं नवंबर 25, नवंबर 25, एंड लेट मी डाउनलोड दिस नवंबर 25 का 3B। डेटा सक्सेसफुल, यस। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये आपका जो आउटवर्ड सेल है वो रिकंसाइल है, बट जब इनवर्ड की बात कर रहे हैं तो देर इज सम डिफरेंस इन सम पैसा और समथिंग, बट मोर और लेस ये पूरा रिकंसाइल है, वैसा है। सो हियर इफ यू सी ऑल द इंफॉर्मेशन इज देयर, एंड ये आपके कंपैरिजन भी आ गया। ओके, सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट 3B का रिकंसिलेशन, जो आपने पोर्टल पे फाइल किया है और वही आपकी बुक्स में है कि नहीं है, दैट ऑल्सो यू कैन कम टू नो बाय गोइंग टू दिस important option of basis of value, and here normally it is selected as none, but आपको select करना है comparison of books and portal values। okay, so normally अगर none select किया होगा तो आपको ऐसा दिखता है, this is the normal screen। फिर आप डाउनलोड करके फिर ये बेसिस ऑफ वैल्यू में चेंज करेंगे तो आपको प्रॉपरली दिखेगा। ठीक है, अभी 3B में जब हम फाइल करते हैं ना, तो एक ऑप्शन आता है कि भाई, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंश्योर करते हैं कि भाई जो मेरी अकाउंटिंग ट्रायल बैलेंस में वैल्यू है और जो मेरे GST 3B में ये जो वैल्यूज आ रही है वो मैच हो रही हो कि नहीं। ठीक है, ये एक बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट आती है। तो वुड यू ऑल लाइक टू नो हाउ टू सी दैट, कि आपको मालूम है कि हाउ टू डू इट? परेश भाई 2 मिनट में फिर से रिको करता हूं, बट करंटली माय क्वेश्चन इज दैट जब भी मैं 3B फाइल करने के पहले मेरा एक क्या बोलता है चेकलिस्ट होता है कि भाई ट्रायल बैलेंस में जो मेरे परचेजेस की वैल्यू, सेल्स की वैल्यू है, और वही मेरे GST या रिटर्न की वैल्यू में मैच होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग वैल्यू मेरे को सप्लाई लेजर जो है वो मैच करने चाहिए। ओके, सो डू यू ऑल डू दैट या नहीं करते हैं, और करते हैं तो कैसे करते हैं? मतलब हम लोग 3B रिकंसाइल 3B का जब नॉट ओनली रिकंसिलेशन, जब 3B फाइल करते हैं, सो डू वी चेक द ट्रेडिंग वैल्यूज? क्योंकि इधर जब हम देख रहे हैं टैक्स ऑन आउटवर्ड, तो यहाँ पे मेरे को सप्लाई लेजर वैल्यूज नहीं दिखा है। मैं यहाँ पे जब एंटर करता हूं तो यहाँ पे मेरे को खाली आउटवर्ड टैक्सेबल वैल्यू है, बट मेरे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या वैल्यू गया है वो यहाँ पे नहीं दिखता है, राइट? ओके, चेक वैल्यूज प्लीज। ओके, ठीक है, तो मैं बताता हूं आपको कैसे करने का। I will repeat the 3B reconciliation process also, Parish bhai, but let me just go into the flow that आपने जो ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं, suppose this is what the return file we have done it for the month of November, and we ought to check it with our trial balance value, कि हमारे ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंटिंग में परचेजेस के, सेल्स की वैल्यू है और वो जो रिटर्न में है वही सेम वैल्यू है कि नहीं है। सो हाउ टू डू दैट, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक बटन है कॉल्ड नेचर व्यू। नेचर व्यू बहुत ही बढ़िया व्यू है, इसमें 2 चीजें बहुत यूजफुल है। एक, अल्ट F1 में जब करता हूं तो ये रेट वाइज ब्रेकअप मुझे मिल जाता है, विच इज यूजफुल इन, मैं जब पीरियड चेंज करूं तो मेरे को एनुअल पीरियड के हिसाब से मेरे लिए बहुत यूजफुल है। ओके, सो दैट इज वन ऑप्शन।
The second option, which I really liked about this nature view, is that when I go in this any of these outward supplies, okay, enter करता हूं, एंटर करने के बाद में इधर पार्टी वाइज ऑप्शन आता है. ओके, ये पार्टी वाइज ऑप्शन आने के बाद में इधर और एक ऑप्शन आता है स्टॉक आइटम वाइज, लेजर वाइज और वाउचर वाइज. बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है ये. और ये मैं लेजर वाइज जब करता हूं ना, तब मुझे मालूम पड़ता है कि भैया ये मेरे सप्लाई लेजर्स में इतने इतने इंपैक्ट हुए हैं. सो दिस आई कैन गो इन माय ट्रायल बैलेंस एंड चेक इट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर वेदर माय sales GST is 638 or not, whether my commission GST is this much or not. ये मैं खुद चेक कर सकता हूं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये बहुत लोगों को नहीं मालूम है हाउ टू डू इट. ओके, सो आउटवर्ड सप्लाईज में सिमिलरली मैं इनवर्ड सप्लाईज में भी जाता हूं. तो लोकल सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मेरे जीएसटी रिटर्न में फ्लो हो रहे हैं, तो वापिस से मैं पार्टी वाइज में गया और पार्टी वाइज में जाने के अंदर राइट हैंड साइड में ऑप्शन है, एक छोटा सा टिक है जिसको मैं लेजर वाइज करता हूं. तो इधर मेरे को ये एक्सपेंस वाइज आ गया, परचेज, रेंट, टेलीफोन एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच मेनी ऑफ अस मिस्ड इट. तो मेरा ये इंटेंशन था कि जब मैं कुछ गिफ्ट दूं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को, तो ये एक मालूम होना चाहिए. आई होप दिस इज यूजफुल. आप परचेज एंड सेल कॉलमनर इसके बाद में भी कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल, राइट. कॉलमनर कॉन्सेप्ट को इससे फिर से यूज कर सकते हैं सर, राइट. सो दिस इज व्हाट आई हैव टू शेयर. आई थिंक इट इज 9:06 and I think we have completed the important aspects of 1 2A 2B IMS. ये हमने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर कर लिया है. सो इफ देयर आर क्वेश्चंस विच वी हैव ऑलरेडी कवर. अच्छा, अभी 3B का मेरे को जैसे बताया था ना, परेश भाई ने पूछा था कि कैसे करना है 3B का. तो ये रिटर्न व्यू में जाना है. पहले रिटर्न व्यू में जाना है. रिटर्न व्यू में जाने के बाद में आपको पहले तो अल्ट जेड करके एक्सचेंज करके डाउनलोड कर देना है. डाउनलोड करते तो उधर ऑप्शन आता है, यू गेट द ऑप्शन ऑफ वर्किंग इट इन दिस. ओके, 3B खाली डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आता है. यू कैन डाउनलोड ऑल द जीएसटी रिटर्न 1 2A 2B 3B चारों साथ में भी डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज वन ऑप्शन, वन थिंग. द सेकेंड स्टेप इज दिस. फर्स्ट स्टेप डाउनलोड करना है. सेकेंड स्टेप इज गो टू बेसिस ऑफ वैल्यू एंड इधर मेथड ऑफ शोइंग फ्रॉम पोर्टल, इधर कंपैरिजन सिलेक्ट करना है बस. कंट्रोल ए. तो ये जब आप कंपैरिजन सिलेक्ट करते हैं तो आपको इधर ब्लू में भी वैल्यू आ जाती है, ब्लैक में भी वैल्यू आ जाती है. वैसा है. दैट्स इट. और कुछ भी नहीं है परेश भाई इसमें. देयर इज नो थर्ड स्टेप. सोहन पाल सेस सोहन पाल सेज लास्ट वाला ऑप्शन फिर से बता दीजिए. ओके सोहन, आई विल शो. नॉर्मली व्हेन यू गो टू जीएसटी 3B रिपोर्ट, दिस इज द रिपोर्ट दैट यू गाइस गेट. ठीक है, इसके बनिस्पत आपको एक नेक्स्ट स्टेप करना है. इसको बोलते हैं नेचर व्यू. नेचर व्यू में जाके जब भी आप ये आउटवर्ड सप्लाईज है, लोकल सप्लाईज है, किसी में भी जाके, जैसे मैं आउटवर्ड सप्लाईज में गया, एंटर. यहां पे जाके इधर मेरे को बटन ऑप्शन मिलता है पार्टी वाइज, F8. इसको मैं क्लिक करूंगा. F8 करने के बाद में तो इधर मेरे को 3 ऑप्शन आते हैं, स्टॉक आइटम वाइज, लेजर वाइज, वाउचर वाइज. मैंने लेजर वाइज ऑप्शन सिलेक्ट किया आपके लिए. तो वो लेजर वाइज ऑप्शन में मुझे मिल गया कि मैंने इनकम हेड्स कौन से सिलेक्ट किए हुए हैं. ये मेरे सप्लाई लेजर्स हैं और इसको मैं मेरे ट्रायल बैलेंस की वैल्यू से या परचेज सेल की वैल्यू से कंपेयर करूंगा. ठीक है. सो ये एक ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है. इसी के साथ में और एक ऑप्शन है जो मैंने नहीं लिया था, वो है स्टॉक आइटम वाइज. मैं पार्टी वाइज में फिर से जाऊंगा एक बार और फिर स्टॉक आइटम वाइज बताऊंगा. तो ये वाला भी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि कौन से आइटम में मैंने क्या HSN कोड लिया है. ये मैं एनुअली भी यूज कर सकता हूं. सी नॉर्मली यू गेट इट इन योर GSTR1, बट 2B में ये नहीं मिलता है. सो ये बहुत ऑप्शन है
कि बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपके एक्सपेंसेस का HSN वाइज भी आपको इधर से डिटेल्स मिल जाए. ओके, let me go to my PPT. Steps before filing: ensure your IMC accepted to be reconciled and recomputed. ट्रायल बैलेंस जो मैंने लास्ट वाला बताया, वन इज रिकनसाइल्ड, उसके पहले बताया एडजस्टमेंट एंट्रीज पोस्ट कर दीजिए. ये वाला कॉन्सेप्ट इज अ 20 minutes कॉन्सेप्ट. आई विल नॉट बी एबल टू टेक इट राइट नाउ. मेनी ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स हैव ऑलरेडी लेफ्ट. few things that I will be sharing it in the PPT. GST नंबर वैलिडेट कर सकते हैं, फाइल GSTR1, ये सब हम कर सकते हैं टैली में से. ओके, so I will not go much into the deeper because we are short of time, and I think Manisha, we have to now. It's 21:10. कितने बजे तक रखता है, कितने बजे तक चलता है अपना मनीषा जी? सोहनपाल, दिस इज GSTR Tally 7 मैंने दिखाया था. And how can we get the recording? Will be uploaded. Don't worry, it will be there. Yes, PPT also I will share. जो हमने आज कॉन्सेप्ट कवर किया उसके PPT शेयर करूंगा. I will share it with Lokesh Bhai and team. I think I don't know how they are going to share it with you. Right. So those of you who would like to unmute and ask the question, please ask to the concept that we have discussed today. Anything you would like to share? कुछ अच्छा लगा, बुरा लगा, please correct me if you think I have not said something correctly. Would like to learn. Hiren sir, Anil sir. API access show please. Paresh bhai, I'm so sorry. Last moment GST का पोर्टल का पासवर्ड चेंज हो गया and that has got locked for 24 hours. So I'll not be able to show. So उसमें कुछ भी नहीं है. प्रोफाइल में जाके आपको खाली enable API access करना है और कुछ भी नहीं है. Thank you Ritesh bhai. Thank you Veer sir. Wow, Bhavesh bhai, thank you for that feedback. Please get connected to me on my LinkedIn. I will share my LinkedIn details once again. These are my connect details. Please get connected to me. Would love to connect with you all on this. And as I had said in the starting, what our team does is all these things. We can get connected for any of these things also as well. So customizations आज session नहीं था, but this is my favorite subject, customization. And we've done some wonderful customizations across the different industries. Right. Thank you, Shankar sir. Definitely would like to connect with you all guys and on this platform. Once again, Lokesh bhai, Girish bhai, welcome sir. How are you doing? My old friend. Thank you, Girish sir. And we'll keep connected. I think Manisha ji, shall we stop the session? Yes, sir. We can end the session. Yeah. Thank you. And keep learning, keep doing these things. Manisha ji, please convey my good wishes to Lokesh bhai and Sure, sir. keep doing these good things. Thank you. Thank you, sir. Thank you for joining in. And the session was really, really amazing, sir. I hope everyone have liked it. Right. Thanks. Okay, sir. Shall we end the session? Yeah, please. Okay, sir. Thank you.